Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 4 for business organization and here we will discuss business promotion. The topics to be covered are an entrepreneur, promotion of different types of organizations. Now first is an entrepreneur. Now what is an entrepreneur? Entrepreneur is one in whose mind the idea of doing business of a particular type first takes shape. एक entrepreneur वो होता है जिसके माइंड में सबसे पहले बिजनेस करने का कोई नया आइडिया आता है. He is on the lookout for business opportunities and is a good judge of which products will sell. He is imaginative and is guided by a strong sense of achievement. तो एक entrepreneur एक वो होता है जो बहुत अच्छी जजमेंट करता है और उसके पास काफ़ी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और वो एक अच्छी तरह वो जज कर सकता है कि किस टाइप का प्रोडक्ट उसे मार्केट में लाना चाहिए और किस टाइप से उसकी मार्केटिंग करनी चाहिए. काफ़ी इमेजिनेटिव होता है और अपनी अचीवमेंट को अच्छे से गाइड कर सकता है. He is not afraid of future uncertainties. He is prepared to take risk and face challenges. Above all, an entrepreneur is one who creates something new, something different. He innovates and combines resources in the form of men, materials and money and brings them together to make the business venture profitable. सो एक ऑन्टरप्रेन्योर जो है वो नए आइडियाज़ इनोवेट करता है, रिसोर्सेज को कंबाइन करता है मैन, मटेरियल और मनी की फॉर्म में और उनको एक साथ एक बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने में एम्प्लॉय करता है. व्हाट द एंटरप्रेन्योर्स डू मे बी रिगार्डेड एज एंटरप्रेन्योरशिप. सो जो भी एंटरप्रेन्योर्स प्रैक्टिस करते हैं उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. एंड इन अदर वर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप इज एक्ट ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर. The word entrepreneurship is actually derived from the French word entrepreneur, which means to undertake, to pursue opportunities, to fulfill needs and wants of people through innovation and starting business. The entrepreneur is the person who does all this. He undertakes a venture, organizes it, raises capital to finance it and assumes the whole or major part of the risk of business. Thus, entrepreneurship is the process of giving birth to a new business. So, entrepreneur जो है वो पर्सन होता है जो वो सारे काम करता है जो उसके बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं या एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं. एक वेंचर को अंडरटेक करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसके लिए कैपिटल रेज करता है और एक बिजनेस के रिस्क को अपना मेजर पार्ट कंसिडर करता है. नाउ इनोवेशन एंड रिस्क बेयरिंग आर टू बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. इनोवेशन और रिस्क बेयरिंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एक एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट होती हैं. सबसे पहले इनोवेशन. इफ अ बिजनेस एक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग स्पेशल टू बी डन, इट इज़ नॉट एंटरप्रेन्योरशिप. अगर कोई भी एक बिजनेस एक्टिविटी में कोई भी नई चीज़ नहीं होती, कुछ भी स्पेशल चीज़ नहीं होती तो हम उसको एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कह सकते. तो इसलिए इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. नई आइडियाज़ जनरेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक एंटरप्रेन्योर के लिए. In fact, a person cannot be called an entrepreneur unless he introduces something new, something different in his venture. This is known as innovation, that is doing something different from others. Next factor is risk bearing. Risk bearing is another aspect of entrepreneurship that every entrepreneur has to cope with. मतलब पहला हमने पढ़ा था अभी इनोवेशन, यानी कि न्यू आइडियाज ज़रूर होने चाहिए तभी हम उसको एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं. और सेकंड चीज़ है रिस्क बेयरिंग, यानी कि उसके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपने बिजनेस के फेल होने का रिस्क भी बेयर कर सके, उसे भी सह सके. वन who is an entrepreneur must be a risk taker, not a risk avoider. In fact, starting a new business always involves risk because money is invested for profits in future. To try anything new is also risky. A new venture may not bring the expected profits or may fail and run into losses.
नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. नाउ एंटरप्रेन्योर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि इंडिपेंडेंस, हार्ड वर्क, डिजायर टू अचीव गोल्स, फोरसाइट एंड डायनामिक आउटलुक, ओपन माइंडेडनेस, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, वर्किंग रिलेशनशिप, गुड ऑर्गेनाइजर एंड एप्टीट्यूड विद इनोवेशन. सो फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस. कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने आप से बिजनेस स्टार्ट करता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होता. नेक्स्ट इज हार्ड वर्क. जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके अंदर हार्ड वर्क करने की ज़ील होती है. ही इज रेडी टू वर्क हार्ड. देन इज द डिजायर टू अचीव गोल्स. ही इज एम्बिशियस and have a strong desire to achieve what he has planned. Then foresight and dynamic outlook. Basically, these people have wide knowledge about business environment, that is market, consumer attitude, technological development, etc. Further, they are dynamic in forecasting business uncertainties and risk. Accordingly, they take quick and sound decisions. So, जो एंटरप्रेन्योर्स होती हैं उनके पास एक फोरसाइट और डायनामिक आउटलुक होता है. वो अपने आप को, अपने बिजनेस की अनसर्टेनिटीज को भी फोरकास्ट कर सकते हैं और रिस्क लेने में भी केपेबल होते हैं. देन इज द ओपन माइंडेडनेस. दे आर इंटेलिजेंट इन प्रिडिक्टिंग चेंजेस in business environment. However, they never resist changes because they know that they cannot stop it. Next is the optimistic outlook. They are generally inclined to believe that present problems are of a temporary nature and conditions will be favorable in due course. So उनका हमेशा ही पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है अपने बिजनेस को लेके. वो ये सोच के चलते हैं कि अगर नेगेटिव कंडीशंस भी आई हैं तो वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही है और आगे चल के दे विल इनकर प्रॉफिट्स. देन वर्किंग रिलेशनशिप. The success of a business mostly depends upon its workers first and then their links with other business undertakings. Most of the successful business entrepreneurs have had harmonious relationships with other. तो वो हमेशा हर किसी से अच्छे relationships बना के चलती हैं ताकि मार्केट में एक rapport establish कर पाएं. Then good organizers. They are good at bringing together different type of resources needed for starting a business and making it operationally efficient. So जो good entrepreneurs होते हैं वो good organizers होते हैं. वो हमेशा एक अलग अलग तरीके के resources को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और उसके बाद अपना business को start करते हैं efficiently. Then innovative aptitude. Most of the successful entrepreneurs have innovative aptitude. They spend part of their income on research and innovative activities so that they offer suitable products to meet the demands of consumers. Next is the functions of an entrepreneur. Now, develops an idea and explores opportunities. जो entrepreneurs होते हैं उनका first function है ideas develop करते हैं और नई नई opportunities को explore करते हैं. Next is product analysis and market survey. प्रोडक्ट की अच्छे से एनालिसिस करते हैं और मार्केट ट्रेंड को समझते हैं कि कंज्यूमर्स की क्या डिमांड्स है, उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं और कैसे अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेहतर बनाना है दूसरों से. देन डिसाइड्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंटरप्रेन्योर ही अपने फॉर्म को डिसाइड करते हैं कि उनका ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप पे बेस्ड होगा, पार्टनरशिप होगा या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी. देन दे डिसाइड द लोकेशन कि कहाँ पे उनका ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस उन्हें इस्टेब्लिश करना है. देन दे कलेक्ट नेसेसरी कैपिटल. फाइनेंसिंग भी उन्हीं का काम होता है कि कहाँ से उन्हें कैपिटल को कलेक्ट करना है. देन प्लेसेस ऑर्डर्स फॉर मशीनरी. रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. देन डिजाइंस इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी उन्हीं का काम होता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करना है और इसके अंदर आता है जैसे कि टोटल वर्क क्या होगा एंटरप्राइज का, उसके मेजर फंक्शंस जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल, परचेज एटसेट्रा, उनको कैसे इन्वॉल्व करना है बिजनेस में और कैसे अपने बिजनेस को इन सारे स्ट्रक्चर्स में, इन सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है. एंड देन
fulfills formalities and launches enterprises। और उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज हो या फिर गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो, उन सबको फुलफिल करके एंटरप्राइज को लॉन्च करना भी एक एंटरप्रेन्योर का ही काम है। नेक्स्ट इज द प्रमोशन। अभी तक हमने पढ़ा एंटरप्रेन्योर कौन होता है। नाउ वी विल स्टडी हु इज अ प्रमोटर। A business enterprise does not come into existence on its own. It is the result of the efforts of an entrepreneur who conceives the idea based on his knowledge of business opportunities and takes necessary steps to launch the business venture. He is also known as promoter. एक बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो अपने आप से एग्जिस्टेंस में नहीं आता। ये एंटरप्रेन्योर का काम होता है जो आइडिया कंसीव करता है, उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को अपनी नॉलेज में लेके आता है और उसके बाद एक बिजनेस को सेटअप करता है। उसको हम प्रमोटर भी कह सकते हैं। And as a promoter, he assembles the required funds and people and serves both as a mother and midwife to the enterprise. Thus, the promoter is the kingpin of business as he or she undertakes the risk and gives a concrete shape to business propositions. Now, distinction between entrepreneur and promoter. Those who are innovators and risk bearer are strictly known as entrepreneurs, while those who take steps to set up the business and make it operational are known as promoters. So, entrepreneurs वो होते हैं जो नया आइडिया बनाते हैं, इनोवेटर्स होते हैं और जो रिस्क बेयरिंग कैपेबिलिटीज होती हैं, यानी कि वो रिस्क टेकर होते हैं, ना कि रिस्क अवॉइडर। लेकिन प्रमोटर्स वो होते हैं जो एक्चुअल में बिजनेस को सेटअप करते हैं और उसको ऑपरेशनल बनाते हैं। देन इट डज नॉट एंड विद द एंटरप्रेन्योर अंडरटेकिंग टू बियर द रिस्क ऑफ बिजनेस। इट इंक्लूड्स प्लानिंग फॉर द बिजनेस एंड टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टू पुट इट इनटू ऑपरेशन। आफ्टर ऑल, business becomes a business only when it gets going. So, entrepreneur का काम होता है सिर्फ रिस्क लेना, लेकिन वहां पे कहानी खत्म नहीं होती। उसके बाद पूरे बिजनेस की प्लानिंग भी जरूरी होती है, सारे नेसेसरी स्टेप्स भी लेने होते हैं कि वो ऑपरेशन में कैसे आए। तो इसलिए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रमोटर बहुत जरूरी है। Thus, in wider sense, we cannot make a difference between the role of an entrepreneur and the role of promoter. सो इसलिए हम एंटरप्रेन्योर और प्रमोटर को अलग अलग स्टडी नहीं कर सकते, उन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। नाउ टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स। फर्स्ट इज द प्रोफेशनल प्रमोटर। These are specialists in forming new business enterprises. After promoting an enterprise, they eventually hand over the control and management to the shareholders of the company. प्रोफेशनल प्रमोटर्स होते हैं जो प्रोफेशनली इसी काम के लिए बने हैं। वो होते हैं जो कि बिजनेस को डिजाइन करते हैं, उसको ऑपरेशनल स्टेज पे लेके आते हैं और उसके बाद जब बिजनेस ऑपरेट करना शुरू करता है तो उसके शेयर होल्डर्स को वो बिजनेस हैंड ओवर कर देते हैं। नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल प्रमोटर। These promoters float new enterprises during favorable conditions in securities market. They are people who have financial stability and are looking forward to new opportunities for investment. So financial promoters हम उनकी तरह consider कर सकते हैं जो एक business को finance provide कर रहे हैं. Then entrepreneurial promoters. These promoters conceive the idea of a new business unit, do the necessary preliminary work in setting up the business unit and ultimately control and manage the same. In India, most promoters belong to this category. तो entrepreneurial promoters वो होते हैं जो entrepreneur का भी काम करते हैं और promoter का भी काम करते हैं और ज़्यादातर promoters जो हैं वो entrepreneur ही होते हैं इंडिया में अगर हम देखें तो. Next is the institutional promoters. These are some specialized institutions like Industrial Development Bank of India, that is IDBI, and National Industrial Development Corporation, etc., which are providing technical, managerial and financial assistance for the promotion of new enterprises. These institutions collaborate with other entrepreneurs to launch the enterprises. So institutional promoters वो institutions होते हैं जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो टेक्निकली, मैनेजरियली और फाइनेंशियली साउंड बन सके और अपने बिजनेस को अच्छे से चला सके. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट. सिंस इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ बिग promoter of enterprises.
It has promoted several enterprises in different fields such as ordnance factories, heavy electricals, shipping, iron and steel, fertilizer and pesticide, ऑयल एंड नेचुरल गैस एटसेट्रा. सो गवर्नमेंट प्रमोटर की तरह वहां पे हेल्प करती है जहां पे जैसे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो या फिर जहां पे वो भी एज अ शेयर होल्डर एक्ट करती है, जैसे कि शिपिंग इंडस्ट्री में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर्स में, ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज में. नाउ नेक्स्ट इज द जॉइंट स्टॉक कंपनी. A partnership firm also must have more than one person involved in the business. But legally speaking, a partnership firm has no existence apart from its partners. On the other hand, a company after it is formed acquires a separate legal entity. So a partnership firm जो होती है वो होती है जिसमें एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं. लेकिन अगर हम लीगली देखें तो पार्टनरशिप फर्म की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होती, सिर्फ उसके पार्टनर्स होते हैं. इट इज रिगार्डेड इन लॉ एज अ सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर्स हु जॉइन इट. बिकॉज ऑफ दिस फीचर द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी requires a number of legal formalities to be completed before it can be established. लेकिन अगर हम कंपनी देखें तो कंपनी होती है एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट की गई है लॉ में भी, और इस फीचर की वजह से जो प्रमोशन होता है कंपनी की उसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड वन और मोर प्रमोटर्स कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग अ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस. नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी. रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी इज नोन एज इनकॉर्पोरेशन. जब हम कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं तो इस प्रोसेस को इनकॉर्पोरेशन कहते हैं. अ कंपनी इज सेड टू बी इनकॉर्पोरेटेड व्हेन इट रिसीव्स द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. द सर्टिफिकेशन ऑफ incorporation is a conclusive proof of the fact that a company bearing a specific name has been lawfully formed. So जब कंपनी एक हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसको जब फॉर्म करते हैं तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट लेना होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कि मिलता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस से. और ये एक सर्टिफिकेट जो होता है इससे ये कंक्लूड किया जाता है कि अब ये कंपनी जो है इसका एक स्पेसिफिक नाम है और लॉफुली अब ये फॉर्म हो चुकी है. The promoter has to take the following steps obtaining the certificate of incorporation. First is the selecting a name for a company. सबसे पहले एक नाम सोचा जाता है कंपनी के लिए. उसके बाद डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं और उसको प्रिंट किया जाता है और उनको फिल करना होता है. एंड देन फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. नाउ दीज आर द स्टेजेस इन कंपनी प्रमोशन. सबसे पहले है हमारा एक प्रमोटर का डिसीजन आएगा कि उसको प्राइवेट कंपनी बनानी है या पब्लिक कंपनी बनानी है. दोनों ही केस में पहले सिलेक्शन होगा कि उसको क्या नाम सोचना है. देन मेमोरेंडम प्रिंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. आफ्टर दैट प्रिंट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. नेक्स्ट इज द लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कंपनी में कौन कौन से डायरेक्टर्स होंगे. उन सभी डायरेक्टर्स का कंसेंट होता है कि कंपनी फॉर्म करने में वो भी तैयार है. देन इज द डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्टर्स टू टेक एंड पे ऑफ for the qualification shares. After that, consent of controller of capital issues. Then declaration of compliance with legal requirements. उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन फाइल करना उसके लिए. Then is the issue of certificate of incorporation by registrar. और उसके बाद बिजनेस कमेंस हो जाता है, बिजनेस सेटअप होता है प्राइवेट कंपनी के लिए. लेकिन अगर हमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी है तो उसके लिए आगे कुछ और पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस. जहां पे भी हमें ऑफिस खोलना है उसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है उसका नोटिस देते हैं. देन अपॉइंट द बैंकर्स. आफ्टर दैट प्रिपेयर प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. नेक्स्ट इज registration of prospectus, then issue of prospectus, subscription and allotment of shares, then declaration of compliance with legal requirements, and last is issue of certificate of commencement of business by the registrar. and इसके बाद business start होता है. Next is the cooperative society. A cooperative society is a form of organization wherein persons voluntarily associate together on the basis of equality. जहाँ पे पर्सन एक साथ अपने
मर्जी से आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं. दे पूल देयर रिसोर्सेज एंड वर्क टुगेदर. दे अंडरटेक production or distribution of goods and services with a motive of mutual benefit rather than profit. So cooperative society वो होती है जहाँ पे प्रॉफिट से ज्यादा म्यूचुअल बेनिफिट देखा जाता है, एक दूसरे का बेनिफिट देखते हैं. The promoters of a cooperative society have to take the following steps to get registered. First is make an application to the registrar of cooperative societies stating in it the name of the proposed society, its objectives and particulars about its shares, capital share. So सबसे पहले एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ, जहाँ पे नेम होता है सोसाइटी का, उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके पर्टिकुलर्स होते हैं. देन प्रिपेयर दी बाईलॉज, दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी सोसाइटी फॉलो करेगी, और उसको सबमिट किया जाता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे. देन द एप्लीकेशन एंड द बाईलॉज हैव टू बी साइंड बाय द प्रमोटर्स. Now here are some questions for you. First, explain different functions of an entrepreneur, and second is list the documents to be filled for registration of a company. Thank you and have a nice day.